کا انوکھا کارنامہ، اساتذہ اسکول کی حدود میں بچوں کی گنتی کریں گے۔ 1 دن سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے۔ 1 اپریل سے سروے شروع کریں، محکمہ تعلیم کی ہدایت۔ راجن پور کی لڑکیاں بھی ہوں گی تعلیمی یافتہ، گرلز کنال ہائی اسکول کی 2 کروڑ کی لاگت سے بننے والی نئی بلڈنگ میں تدریسی عمل شروع، منصوبے میں 17 نئے کمروں کی تعمیر کی گئی۔ ڈی جی خان کی صفائی کون کرے گا؟ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ صفائی کمیٹی کو کارپوریشن کی جانب سے عملہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کے بعد میئر کا انکار۔ صفائی کمیٹی این جی او کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، عملہ بھی وہی فراہم کرے، میئر ڈی جی خان کا سیدھا جواب۔ فوڈ اتھارٹی بہاولپور کی مضر صحت دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی، ملتان لودھرا روڈ پر ناکہ بندی، 285 لیٹر مضر صحت دودھ طلب کر دیا۔ ڈی جی خان میں محکمہ ایکسائز کا ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن، شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد دکانیں سیل کر دی۔ بہاولپور کی مختلف شاہراہوں پر لگے لاکھوں مالک کے ٹریفک سگنل غیر فعال، سگنلز بند ہونے سے ٹریفک روانی میں مشکلات، شہری پریشان۔ ملتان میں ڈرائیورز حضرات ہو جائیں ہوشیار، اوور سپیڈنگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ہوگی کارروائی۔ ملتان سمیت صوبے بھر میں ٹریفک پولیس نے آج سے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ ملتان میں حضرت بی بی پاک دامن کا دربار خستہ حالی کا شکار، مرمتی کام نہ ہونے کے باعث دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مزار پر آنے والے زائرین شکوہ کناں۔ میاں والی میں تجاوزات کی بھرمار، قبضہ مافیا سرگرم، فٹ پاتھ پر ہی دکانیں سجا لی۔ ادھر بہاولپور شاہی بازار میں بھی فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کا چلنا بھی ہوا دشوار، انتظامیہ بے بس و لاچار۔ میاں والی کے نواحی علاقے ہنولی اڈا پر حادثہ، ٹرک نے 3 بچیوں کو کچل ڈالا، ورثاء کا لاش روڈ پر رکھ کر احتجاج، ڈرائیور موقع سے فرار۔ ملتان کے علاقے کتب پور میں ڈکیتی واردات کی کوشش، سی سی ٹی وی فوٹیج روہی نے حاصل کر لی، 2 ڈاکو گرفتار۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا آج ڈی جی خان کے دورہ متوقع، شہر بھر میں خیر مقدمی بینر جویزہ، وزیراعظم کی آمد سے قبل انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ شفاف الیکشن کرانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کر نگران وزیراعظم منتخب کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں پر اعتراض کرنے والے کورٹ سے رجوع کریں۔ ادھر ملتان کے علاقے سبحان پور میں پی ٹی آئی کا جلسہ، شاہ محمود قریشی کا کارکنان سے خطاب۔ رحیمیہ خان میں 122 ووٹرز ڈسپلے سینٹرز قائم، ریجنل الیکشن کمشنر منصور عباس کا ڈسٹرکٹ الیکشن آفس کا دورہ، سینٹر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ادھر لیا میں بھی عام انتخابات کے حوالے سے 79 ڈسپلے سینٹر پر ووٹر لسٹیں آویزاں کر دی گئیں۔ مظفر گڑھ میں جدید ہیپاٹائٹس کلینک نے کام شروع کر دیا، 25 ملین کی لاگت سے بننے والے کلینک سے ہیپاٹائٹس کے مریض مستفید ہوں گے۔ رحیمیہ خان میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں کے دیر سے مکمل ہونے پر کارروائی کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال کے پرانے بیڈز کھلے آسمان تلے پھینکنے کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر خانیوال کا نوٹس، پرانے بیڈز کو بنیادی ہیلتھ سینٹرز میں تقسیم کرنے کا حکم۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان انوار الحق کا شہر کا دورہ، 13 رجب کے حوالے سے جلوس روٹس کی صفائی کا جائزہ لیا۔ پاکستانی جغرافیہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ محمد ناصر عباس کا ڈسٹرکٹ بار رحیمیہ خان سے خطاب، کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبے سے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی۔ ڈی جی خان میں فلور ملز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس، ڈویژنل صدر حبیب الرحمان کا اس سال رمضان پیکج میں حصہ لینے سے انکار، کہتے ہیں لاہور میٹنگ کے بعد پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مداخلت کی تو ملز بند کر دیں گے۔
आल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के सदर काशिफ चौधरी का दौरा मुल्तान, ताजिर बरादरी से मुलाकात की और मसाइल भी सुने। बहावलपुर पुलिस का इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, डकैती और संगीन मुकदमात में मतलूब नईम उर्फ भैया गिरफ्तार। हासिलपुर में मेडिकल एसोसिएशन के एहतजाज में जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ा गया, शहरियों ने खूब तवाज़ुन के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। रिक्शा ड्राइवर 2 बेटों और 2 बेटियों का बाप बनने पर खुशी से निहाल। कोटद्दू में ओजीडीसीएल की जानिब से 3 रोजा फ्री आई कैंप, शहरियों की बड़ी तादाद ने आंखों का मुआयना कराया। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में पहली हेपेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस, मुल्क भर से नामवर डॉक्टर्स की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से सरायकी खित्ते में इलाज में आसानी होगी। जहानिया में होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन का एजुकेशनल सेमिनार, मुख्तलिफ शहरों से होम्यो डॉक्टर्स की शिरकत। मरकजी इमाम बारगाह हारूनाबाद में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से तकरीब का एहतमाम, मुकर्रीरीन ने जनाबे अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत बयान की। उस शरीफ का कदीमी 15 वाला मेला, दरबार हज़रत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह पर ज़ायरीन की आमद, झूले और खाने पीने के अशाज सभी की तवज्जो का मरकज। कर्तबा स्कूल रहीमा खान में सालाना तकरीबे तकसीम इनामात, तकरीब में छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस में हाज़रीन के दिल मोह लिए। वज़ीर आला पंजाब स्पोर्ट्स प्रोग्राम, लीजी खान में क्लास 9 से 12 तक खेलों का शेड्यूल जारी, पहले मरहले में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुकाबले होंगे। नूर महल में बहावलपुर कैंटोनमेंट की जानिब से जश्न बहारा मेला, कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगर ने इफ्तिताह किया। बहार के रंग, खूबसूरत स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। और सरगोदा आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम जिना हॉल मियाँवाली में फोक म्यूजिक शो का इनेकाद, नौजवान गुलकार ने अपने फन का मुजाहरा किया। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। को गिरफ्तार करके आतिशबाजी का सामान और शराब बरामद कर ली है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही मजहर खान से। मजहर खान, कहिएगा कितनी बड़ी खेप बरामद हुई है मुलजिमान से? जी बिल्कुल, ये पुलिस थाना कुतुबपुर ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान मोहम्मद इरफान नामी जो शख्स है उससे अनार, आतिशी और उसके अलावा पटाखे और जो दीगर आतिशबाजी का सामान है वो बरामद किया गया है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। इसके साथ साथ पुलिस की जो कार्रवाई है थाना दौलत गेट की, उसमें जो एक मनशियात फरोश था यासिर सरफराज, जो देसी शराब का कारोबार करता था, पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस यासिर सरफराज से 10 लीटर शराब बरामद की है। पुलिस हुकाम ने इन दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि इनसे तहकीकात भी की जा रही हैं। जी मजहर खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे तामीर तरक्की की। मुल्तान शहर की गाड़ियां बर वक्त मंजिल पर पहुंचेंगी। सड़कों की कुशादगी और ट्रैफिक निजाम की बहाली के लिए 14 करोड़ मालियत का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। 9 नंबर चौक की तामीर का एक हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है।
ملتان ترقیاتی ادارے کی جانب سے 14 کروڑ روپے کے منصوبے سے ملتان کے مصروف چوراہوں کو کشادہ کرنے کے کام کا آغاز ہو گیا۔ 9 نمبر چوک کی کشادگی کے لیے دیوار کا ایک حصہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ دیوار توڑنے کی وجہ نال روڈ کھلا تھی، روڈ کھلا تھی یا ٹریفک جڑی بہت زیادہ جام تھی، یہ جام نہ تھی، ٹریفک کو بہت زیادہ آسانی تھی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 9 نمبر چوک پر ٹریفک کا دباؤ زیادہ رہتا ہے، خصوصاً سکول کی چھٹی کے اوقات میں سڑک گھنٹوں بلاک رہتی ہے۔ کشادگی سے ٹریفک مسائل سے چھٹکارا ملے گا۔ تنگ چوک ہے پیا، یہ جڑا 9 نمبر والا چوک ہے بڑا تنگ ہے پیا۔ ہوں انشاءاللہ تعالی جڑا حکومت نے یہ ڈیولپمنٹ دا پروگرام کیتے سڑک کو کھلی کرنے واسطے یہ جڑا وہ کیتے یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے۔ 9 نمبر چوک کو ایم ڈی اے کی جانب سے 27 سے 30 فٹ تک چوڑا کیا جا رہا ہے، جس سے ٹریفک کی روانگی میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ کیمرامین زاہد جمال کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ڈی جی خان اور راجن پور کے قبائلی علاقے ہوں گے ترقی یافتہ، بجلی، پانی اور سڑکوں کے مسائل بھی ہوں گے حل۔ 2 کروڑ 20 لاکھ کے 468 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اضلاع کے قبائلی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پروجیکٹ ڈائریکٹر طاہر خورشید نے کی۔ اجلاس میں منظور کیے گئے منصوبوں میں 50-50 ووٹ کے 424 سولر پینل کی فراہمی شامل ہے۔ سولر پینل پر 28,65,000 کی لاگت آئے گی۔ 1 کروڑ 29 لاکھ روپے سے پینے کے پانی، آبپاشی، کنویں اور حفاظتی دیوار کے 24 منصوبوں کی بھی منظوری دی گئی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر طاہر خورشید کا کہنا تھا کہ منصوبوں میں معیار اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں دونوں اضلاع کے متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ صفائی تو نصف ایمان ہے، مگر ڈی جی خان کی صفائی کون کرے گا؟ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ صفائی کمیٹی کو کارپوریشن کی جانب سے عملہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کے بعد میئر کا انکار۔ صفائی کمیٹی این جی او کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، عملہ بھی وہی فراہم کرے۔ میئر ڈی جی خان کا سیدھا سادہ جواب۔ ڈیرہ غازی خان میں شہر کی صفائی کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے ہی کھٹائی میں پڑ گیا۔ ایڈیشنل کمشنر اصفر ضیاء کی طرف سے بنائی گئی صفائی کمیٹی کی سفارشات میئر نے ماننے سے انکار کر دیا۔ صفائی کمیٹی کے سربراہ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملک رمضان نے پلان تیار کیا اور کارپوریشن سے صفائی عملے کے لیے طلب کیا۔ اس پر میئر شاہد امین چاڑیا نے کہا کہ صفائی کمیٹی این جی او کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، عملہ بھی این جی او سے لے، ہم نہیں دیں گے۔ جبکہ صفائی کمیٹی نے ابتدائی طور پر شہر کے 4 بلاکس کو این جی او کے ساتھ مل کر صفائی کے لحاظ سے ماڈل بلاک بنانا تھا، جبکہ صفائی میٹنگ میں چیف آفیسر کارپوریشن کی طرف سے عملہ صفائی دینے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ قوم کے معمار اب گلیوں میں ہوں گے خار، محکمہ تعلیم ڈی جی خان کا انوکھا کارنامہ۔ اساتذہ اسکول کی حدود میں بچوں کی گنتی کریں گے، 1 دن سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے۔ 1 اپریل سے سروے شروع کریں، محکمہ تعلیم نے ہدایات جاری کر دی۔ ڈی جی خان میں محکمہ تعلیم کی طرف سے علاقے میں بچوں کی تعداد پتہ کرانے کے لیے سروے کرانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں اساتذہ پڑھائی کے علاوہ اپنے اسکول کی حدود میں رضا کرانہ طور پر سروے کریں گے۔ اس میں 1 دن کے بچے سے لے کر 16 سال تک کے بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ ڈیٹا میں کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کتنے اسکول نہیں جاتے سب معلوم کیا جائے گا۔ تمام بچے اگر اسکول جاتے ہیں تو کس اسکول جاتے، اگر نہیں جاتے تو اس کی وجہ بھی معلوم کی جائے گی۔ اس پر سی ای او ایجوکیشن کا کہنا تھا اساتذہ 1 اپریل سے سروے شروع کریں گے اور ڈیٹا مکمل کر کے محکمہ تعلیم کو جمع کرائیں گے۔ ڈی جی خان میں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی آج دورہ کریں گے۔ وزیراعظم ایئرپورٹ کے قریب ہی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈپٹی کمشنر محمد ابراہیم جنید کی زیر صدارت ضلعی انتظامیہ کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے کل کے دورہ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تمام ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم ایئرپورٹ کے نزدیک منتخب افراد کے اجتماع سے خطاب کریں گے اور ترقیاتی شمالی بائی پاس کے ساتھ غازی گھاٹ پل منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اعلیٰ افسران کے بغیر اجازت اسٹیشن چھوڑنے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ تونسا شریف کے نواحی بستی میں سالانہ عرس مبارک سخی دائرہ دین پناہ کے عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز سجادہ نشین مخدوم منیر اختر نے چادر چڑھا کر کیا۔ عرس کی چادر چڑھائی کی تقریب کے موقع پر ہمارے نمائندے عظمت بزدار اس وقت دائرہ دین پناہ میں موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ عظمت بزدار آگاہ کیجیے گا، کیسا سما ہے؟ زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔
جی بالکل، اس وقت میں دائرہ دین پناہ میں سخی دائرہ دین پناہ کے دربار کے وسط میں موجود ہوں. یہاں پہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہ جو سجادہ نشین ہے مخدوم منیر اختر، انہوں نے عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز چادر چڑھا کے کیا ہے. اس وقت مخدوم منیر اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے کہ ان سے بات کرتے ہیں کہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے، عرس کی تقریبات کب تک جاری رہیں گی. یہاں پہ خواتین کے مخصوص دن ہیں اور مردوں کے لیے مخصوص ایام ہیں. تو اس عرس کے حوالے سے مخدوم صاحب تھوڑا سا جو کہ سجادہ نشین ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں. مخدوم صاحب تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے، کب تک یہ عرس کی تقریبات جاری رہیں گی اور جو خواتین کے لیے مخصوص دن ہیں وہ کب شروع ہو رہے ہیں؟ جمعرات والے دن سے عرس کی تقریبات شروع ہوئے اتوار تک انشاءاللہ یہ مردوں کا عرس زیارت کا زائرین جو آتے ہیں زیارت کے لیے ان کا پروگرام ہوتا ہے. سوموار والے دن سے 3 دن تک عورتوں کے لیے مخصوص ہے. جو مرد کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے جہاں ہم نہیں آنے دیتے، صرف عورتیں آتی ہیں جو زیارت کے لیے 3 دن تک. جمعرات اور جمعے والے دن 2 دن ہر کوئی آتا جاتا رہتا ہے اور جمعے تک عرس ختم ہو جاتا ہے. عظمت بزدار آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. تو میرا علی ولی ہے، تو میرا حاجت روا. بات کریں گے جشن علی کی. ولادت حضرت علی کے سلسلے میں ملتان میں امام بارگاہ شبیر لال میں محفل منعقد جاری ہے. آئیے آپ کے لیے چلتے ہیں. امام بارگاہ کی دستار بندی الحاج شفقت حسین بھٹا صاحب کر رہے ہیں. جی جی میں تو پیچھے ہوں بھائی، ذرا تھوڑا سا ادھر ہو جائے، ذرا ویڈیو بن رہی ہے. جی سر سامنے دیکھیے گا سر. عموماً ٹرینڈ یہی ہے ہم نے تو دیکھا نا. گروپ فوٹو بنا دیں. جی سر سامنے دیکھیے گا سر. چلو جی جی 1 منٹ، ایک گروپ فوٹو بنوا سر. سامنے دیکھیے گا سر. جی پلیز. یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ملتان میں امام بارگاہ شبیر لال میں محفل منقبت منعقد کی گئی ہے. دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے روٹی. دنگل کے ڈھول پر فتح کا اعلان، ہار جیت سے بڑھ کر پریت کا پیغام. بات ثقافتی میلوں کی ہو یا مقامی کھیلوں کی، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. لسی کا ٹھنڈا گلاس اور ساگ کا سواد، تپتے دن کے بعد پورے چاند والی ٹھنڈی رات. علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. ویلکم بیک. مظفر گڑھ میں ہیپاٹائٹس کا مرض بے قابو ہو گیا. مرض پر قابو پانے کے لیے حکومت پنجاب اور پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے قائم کیے گئے جدید ہیپاٹائٹس کلینک نے کام شروع کر دیا. کاشف نذیر کی رپورٹ دیکھیے. مظفر گڑھ میں آلودہ پانی کے استعمال اور دیگر وجوہات کے سبب شہری ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہونے لگے ہیں. ہیپاٹائٹس پر قابو پانے کے لیے پنجاب کے دیگر 25 شہروں کی طرح مظفر گڑھ کے ضلعی صدر ہسپتال میں بھی جدید طرز کا پہلا ہیپاٹائٹس کلینک قائم کیا گیا، جہاں پر مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کی جانے لگی ہے. ہیپاٹائٹس کلینک جو ہے وہ مظفر گڑھ کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں بھی بنایا گیا ہے تقریباً 2.5 کروڑ کی لاگت سے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر 100 سے 120 مریضوں کا چیک اپ کیا جائے گا
और इस हेपेटाइटिस क्लिनिक के लिए जो अमला है वो भी PKLI की तरफ से ही तैनात किया गया है। 25 मिलियन की खतीर रकम से कायम किए गए हेपेटाइटिस क्लिनिक में तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार अमला तैनात किया गया है। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के तावन से जदीद तरीन लेबॉर्ट्री भी कायम की गई है। क्लिनिक में हेपेटाइटिस B और C के मरीजों की स्क्रीनिंग और इलाज के साथ साथ हेपेटाइटिस B से बचाव की वैक्सीनेशन भी की जाती है। हेपेटाइटिस क्लिनिक में स्क्रीनिंग, ब्लड टेस्ट, इलाज और वैक्सीनेशन समेत तमाम तर सहूलियात बिला मुआवजा और मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तमाम मरीज चाहे वो गरीब होंगे या अमीर होंगे, जो यहाँ आएगा हेपेटाइटिस B या C का, एक तो उनको इलाज उनका मुफ्त होगा। इसके अलावा जो उससे पहले इलाज से पहले जो टेस्ट होंगे, मसलन स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, मसलन उसकी जो सपोर्टिव मेडिसिन है, मसलन उसके अलावा जो उनको अगर PCR की ज़रूरत होगी वो भी फ्री ऑफ कास्ट होगा। हेपेटाइटिस के टेस्ट और इलाज महंगा होने की वजह से कई गरीब शहरी इलाज के बगैर अपनी जानें गंवा चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए हेपेटाइटिस के इलाज और वैक्सीनेशन की मुफ्त सहूलत बिलाशुबा हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम है, जो लाखों शहरियों के लिए किसी तोहफा से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ आशिफ नजीर, रोही, मुजफ्फरगढ़। राजनपुर की गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल केनाल कॉलोनी की नई बिल्डिंग में तदरीसी अमल शुरू हो गया। नई बिल्डिंग 17 कमरों पर मुश्तमिल और 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल केनाल कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनने वाली नई इमारत में तदरीसी अमल शुरू होने से तालिबात ने खुशी का इजहार किया। इदारे के सरबराह प्रिंसिपल निगत कहती हैं, जहां नई इमारत ने स्कूल में सहूलियात की कमी को पूरा किया, वहीं पर अब प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने भी सरकारी स्कूल का रुख कर लिया है। बच्चे बहुत खुश हैं नई बिल्डिंग के बनने से। ये 17 क्लासरूम्स हमें हम कदम ने बनवा के दिए हैं और बच्चे यहाँ पे तदरीसी अमल शुरू हो चुका है और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों से दाखिला लेने के लिए आ रहे हैं। हाई स्कूल में बनने वाली नई इमारत समाजी तंजीम हम कदम के ताउन से बनाई गई है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि इस वक्त स्कूल में बिजली का निजाम बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफार्मर के साथ साथ इम्तहानात के लिए हाल की भी जरूरत है। जदीद तर्ज पर बनने वाली 2 मंजिला इमारत में जदीद तर्ज का कंप्यूटर लैब और सिक्योरिटी के निजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। कैमरामैन खिजर अब्बास के साथ खुरम शहजाद, रूही, राजनपुर। मुल्तान रीजन के मुतादिद इलाकों में रेलवे फाटक न होने की वजह से हादसा पेश आना मामूल बन गया। इस हवाले से मुंतजमीन का कहना है कि अवाम को फाटक क्रॉस करते वक्त एहतियात बरतना चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान चाकू। मुल्तान रीजन के मुतादिद इलाकों में रेलवे फाटक न होने की वजह से हादसा पेश आना मामूल बन चुका है, जबकि मुल्तान रीजन के रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर ताहिर मसूद कहते हैं कि रेलवे इंतजामिया भरपूर कोशिश में है कि फाटक लगाने के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम की जिंदगियों का बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। जो हमारे ड्राइवर होते हैं उनके लिए हमने ऐसी जगहों पे ना विसल बोर्ड भी लगाए होते हैं और ड्राइवर जो है फ्रीक्वेंट विस्लिंग करता है, हारन बजाता है, तो अवाम हारन को सुने, विसल को सुने, ट्रेन की आवाज को सुने, उसके बाद जाके जब पूरी तरह तसल्ली हो फिर जाके लेवल क्रॉसिंग क्रॉस करें। रेलवे टेलीकॉम इंजीनियर जावेद असलम कहते हैं कि अवाम को फाटक क्रॉस करते एहतियात करना चाहिए। उनकी जिंदगी बहुत कीमती है, लिहाजा फाटक की क्रॉसिंग पर लगे आगाही बोर्ड पर अमल दरामद करते हुए लोगों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमारे ऐसे गेट्स जहाँ पर अनमैन्ड है, जहाँ पर कोई हमारा आदमी वगैरह नहीं है, पब्लिक को चाहिए जब भी वो गेट क्रॉस करें तो हमेशा पहले रुकें, दाएं बाएं देखें, ट्रेन की विसल सुने, लाइट देखें ट्रेन की, उसके बाद एहतियात से क्रॉस करें क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। इंतजामिया का कहना है कि मुल्तान रीजन के हर जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाना नामुमकिन है। कैमरामैन राव शहबाज के साथ अदनान याकूब, मुल्तान। हजरत बीबी रास्ती अलमरूफ बीबी पाक दामन का 743 बरस कदीम दरबार खस्ता हाली का शिकार। दरबार की हालत ज़ात ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेरा तारिक। हजरत बीबी रास्ती अलमारूफ बीबी पाक दामन हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया की बहू और हजरत शाहरुख न्यालम की वालदा माशदा थीं। हजरत बीबी पाक दामन का दरबार 743 बरस पुराना है। वक्त गुजरने के साथ साथ दरबार की दीवारें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। बरामदे के सतून उखड़ चुके हैं, जबकि छत को मुरम्मत की बजाय लकड़ियों से सहारा दिया गया है, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। हम जियारत के लिए आप देख रहे हैं कि छत के ऊपर सुराखें बहुत खस्ता है, दीवारें भी टूटी हुई हैं, इसलिए हम इल्तिजा करते हैं हुकूमत को ये इसकी मुरम्मत कराए। अब दरबार पर मुल्तानी नकाशी की गई टाइल्स भी अपनी जाज़बियत खो चुकी हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मन्नतों और मुरादों के लिए यहाँ आती है, मगर बैठने की मुनासिब जगह न होने के बायस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तोड़ फोड़ का निशान बन दी, कोई दरबार का कोई इंतजाम है, पता कोई नहीं, पता नहीं कितना आते फिर
تے باقاعدہ سارا دربار خستہ تھی ونا چھت مزید ڈھاون والی. زائرین کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ دربار پر تعمیراتی کام جلد کرائے تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے. کیمرامین فراست عباس کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان. مال مفت دل برہم. جہانیہ میں میپکو کی غفلت سے قیمتی مشینری خراب ہونے لگی. لودھرا خانیوار روڈ پر سڑک کے درمیان موجود وولٹیج ریگولیٹر نہ ہٹائے جا سکے. یہ رپورٹ دیکھیے. جہانیہ میں لودھرا خانیوال روڈ کی 80 لینوں تعمیر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. سڑک کا بیڈ مکمل ہو چکا ہے اور تارکول بچھانے کا کام جاری ہے، مگر بائی پاس پر سڑک کے درمیان موجود بجلی کے پولز اور وولٹیج ریگولیٹر مسئلہ بنے ہوئے ہیں. رابطہ اہلکاروں کی غفلت ہے، انہوں نے ابھی تک یہ پول نہیں ہٹائے، جس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے. ہماری یہی التجا ہے کہ اسے جلد سے جلد ہٹایا جائے. سڑک پر کارپیٹ بچھانے کی تیاریاں بھی مکمل ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ جب سڑک مکمل ہو جائے گی تب ان کھمبوں کو اکھاڑ کر سڑک کو تباہ کر دیا جائے گا. پول سڑک کے درمیان ہونے کی وجہ سے راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور حادثات کا خدشہ ہے. شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ملتان میں شہریوں کی جانب سے ایم ڈی کے خلاف احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا. اس دوران شدید دھوپ میں احتجاج کرتی ایک خاتون بے ہوش ہو گئی. اسی پر ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں محمد مقصود. فاطمہ جینا کالونی کی رہائشیوں کی جانب سے ایم ڈی کے خلاف نواں شہر چوک پر احتجاجی دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے. دھرنے میں مرد، خواتین کے ساتھ بچے بھی شریک ہیں. مظاہرین نے نواں شہر چوک کو عام ٹریفک کے لیے بھی بند کر رکھا ہے. مظاہرین کی جانب سے دن بھر ایم ڈی افسروں کے خلاف نعرے بازی بھی کی جاتی رہی. ہمارا ایم ڈی اے کے اعلیٰ افسران سے اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے مطالبہ ہے کہ ہمارا 2 کنال 9 مرلہ رہائشی رقبہ سکیم سے باہر نکال کے ہمیں واپس دیا جائے اور بقایا جو انہوں نے پلاٹنگ کی ہے وہ رقبہ ہم انہیں دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ یہ اس کا مناسب. This clock is brought to you by دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم کیے جائیں. سیکٹری زراعت کی جانب سے تاحال نوٹس نہیں لیا گیا. عاصم صدیق رپورٹ کر رہے ہیں. ایگری فیلڈ اسسٹنٹ اور انسپیکٹرز کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری ہے. دفتری اوقات میں صبح سے لے کر شام تک زراعت آفس کے سامنے دھرنا دیا جا رہا ہے. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ انہیں 14ویں اور 16ویں اسکیل میں اپ گریڈ کر کے سروس اسٹرکچر نافذ کیا جائے. پروجیکٹ الاؤنسز کی منظوری TADA کی بجائے 10,000 روپے تنخواہ میں فکس کیے جائیں. ہمارا ہڑتال کیے ہوئے 5واں دن ہے. ہمارے سیکٹری زراعت مطالبات پورے نہیں کر رہا. اگر اسی طرح ہمارا سروس سیکٹر بحال نہ کیا گیا تو ہم اسی طرح ہڑتال پہ بیٹھے رہیں گے. یہ مطلب محکمے کا ایک سروس اسٹرکچر ہی نہیں ہے فیلڈ اسٹرکچر کا. اور ہمارے ساتھ یہ سیکٹری صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا انہوں نے یہ پچھلے سال کہ یہ ہم نے بحال کریں گے 2 ماہ میں. 2 ماہ کی بجائے اب پورا سال ہونے والا ہے لیکن ہمارا کوئی مطالبہ پورا نہیں کیا گیا. سیکٹری صاحب نے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، ہماری یونین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. اگر سیکٹری صاحب نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہماری انشاءاللہ عنقریب لاہور اسٹرائک ہوگی. 5 روز گزرنے کے باوجود سیکریٹری زراعت کی طرف سے نو لفٹ کا بورڈ اویزہ ہے. مظاہرین نے پہلے ڈویژن ہیڈ کوارٹر اور پھر لاہور میں مشترکہ احتجاج کا اعلان کیا ہے. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان.
मुल्तान की कबूतर मंडी सहूलियात न होने के सबब वीरान होने लगी। कबूतरों के शौकीन अफराद जिला इंतजामिया से शिकवा करते नजर आते हैं। इसी पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मकसूद। दौलत गेट चौक पर वाक़ कबूतर मंडी, जहां दूर दराज के इलाकों से आए कबूतरों के शौकीन अफराद मंडी के मसाइल से परेशान हैं। मंडी में ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही पार्किंग मौजूद है। पार्किंग नहीं है, दूसरा प्लाट है, उसका मसला है, प्लाट नहीं है यहाँ पे। और क्या नाम है इसका, ये पानी का मसला है, पीने का पानी नहीं है, आगे मजीद गर्मी बढ़नी है। हुकूमत की जानिब से कबूतर मंडी को दौलत गेट से पुराना खानेवाल अड्डा रोड पर मुंतकिल करने के अहकामात पर भी अमल दरामद ना हो सका। फुटपाथ पर मौजूद दुकानों से शहरियों को भी मसाइल का सामना है। यहाँ पर साफ पीने का पानी नहीं है। अवाम जो बाहर से आती है, ना उन्हें पानी पीने का मिलता है, ना उन्हें पार्किंग करने के लिए कोई सवारी खड़ी करने के लिए पार्किंग के लिए जगह। जो प्लाट नीचे अलाट किया गया था कबूतर मंडी के लिए, उसमें भी हमें इंतजामिया की पुलिस आके तंग करती है। शहरियों का कहना है कि हमें मंडी में कबूतर की खरीदो फरोख्त के लिए बहुत दूर से आना पड़ता है। गर्मी में यहाँ ना पीने को पानी मिलता है और ना ही साय का इंतजाम है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। रोही चोलस्तान में जमीनों के अलॉटमेंट के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों के खिलाफ मकामी चोलस्तानी भी मैदान में आ गए। अतहर लाशारी की ये रिपोर्ट देखिए। चोलिस्तानी तरक्याती इदारा भावलपुर के दफ्तर में एहतजाज करते ये हैं मकामी चोलिस्तानी, जो रोही में अलॉटमेंट की मुखालफत और एहतजाज करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। रकबे से काबिज हैं, असा कमजोर हैं चोलिस्तानी लोग। जल्द माल मवेशी घेना तो इस माल भी उठा नहीं खड़ा रहते। चोलिस्तानियों का कहना था कि अलॉटमेंट में रोही के असल बाशिंदों को जमीनें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर काबिज गैर चोलिस्तानी लोग इस अलॉटमेंट को रुकवाना चाहते हैं ताकि इनसे जमीनें वागुजार ना करा ली जाएं। जी अलॉटमेंट बिल्कुल साफ शफाफ थी पे, बेहतरीन तरीके नाल थी पे। जितने भी प्रोसेस थी अलॉटमेंट का साफ शफाफ थी गए। जेडे मार्का ने एहतजाज करने वाले लोग हैं, कब्जा ग्रुप ने याद कि अलॉटमेंट ना थी वने। मकामी चोलिस्तानियों का कहना था कि वो तुरनी, शनाख्ती कार्ड और वोटर लिस्ट में अंदराज पर ही अलॉटमेंट करने पर कमिश्नर भावलपुर और एमडी चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के बेहद मशकूर है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतहर लाशारी, भावलपुर। जनूबी पंजाब में दिन भर होने वाले एहतजाजी मुजाहरों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। खैरपुर टामेवाली की कच्ची आबादी के मकीनों का असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद अरसलान के खिलाफ बगैर नोटिस के मकानात मसमार करने पर एहतजाज। हासिलपुर में मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के एसी के नारवा रवैया के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल चौथे रोज में दाखिल। अद्वियात के हसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कोट मिठन दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद पर आयद पाबंदियों के खिलाफ सरायकिस्तान कौमी इत्तेहाद का धरना जारी। सरबराह सरायकिस्तान कौमी इत्तेहाद ख्वाजा गुलाम फरीद का कहना है कि अमन की दरसगाहों पर पाबंदियां लगाना एक सोची समझी चाल है। और अब लगाएंगे जनूबी पंजाब का चक्कर न्यूज राउंड अप में। मियांवाली के इलाका मोहल्ला गौशाला में चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी के घर वाली गली सीवरेज के पानी के जोहड़ में तब्दील। बदबू और ताफन के बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। मियांवाली के फुटपाथों पर कब्जा माफिया का राज। जगह जगह रेडीबानों के रश के बाद शहरी सड़कों पर चलने पर मजबूर। डेरा गाजी खान में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में टैक्स डिफाल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। मुतादिद दुकानें सील। गाजी यूनिवर्सिटी बचाओ मुस्तकिल वाइस चांसलर तहरीक के बानी ताहिर बज़दार को सीनियर सिविल जज नईम अहमद की अदालत में पेश किया गया। मुख्तलिफ मुकदमात में ताहिर बज़दार की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म जारी। दारुल अमान में खवातीन की भूख हड़ताल का मामला। 2 हफ्ते बाद इंक्वायरी रिपोर्ट जमा। इंक्वायरी ऑफिसर कोमल एजाज ने रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर असगर जलबानी को जमा करा दी। डेरा गाजी खान की बस्ती माछी में घर में सिलेंडर धमाका। 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1112 के अमले ने जख्मियों को टीचिंग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। पंजाब डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की जानिब से मुल्तान समेत 4 अजला में तालबात के लिए 3 रोजा नुमाइश की जाएगी। नुमाइश का इनेकाद लाहौर सोशल वेलफेयर हेड ऑफिस में किया जाएगा। रहीमिया खान में असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम की सरबराही में तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डेंगू के हवाले से जायजा लिया गया। तहसील भर में डेंगू का कोई मरीज सामने नहीं आया और न ही मच्छर या लार्वा बरामद हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। इजलास में डिप्टी डीएच और डॉक्टर उसामा मुनीर, महकमे तालीम और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने शिरकत की। इजलास के दौरान तहसील में डेंगू की सूरत हाल और रोकथाम के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि तहसील भर में 3 मरीज डेंगू के शुबे में आए, जिनमें डेंगू की तस्दीक नहीं हुई। रहीमिया खान डेंगू फ्री तहसील है। तहसील भर में किसी भी जगह पर डेंगू का मच्छर या लावा बरामद नहीं हुआ। डेंगू मच्छर या लावा की तलाश में टीमें शहर भर में काम कर रही हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए कबाड़ खानों, टायर शॉप, कब्रिस्तानों और स्कूलों में स्प्रे कर दिया गया है।
उधर रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए तरक्याती अमूर का इजलास हुआ। MNA मियां इम्तियाज अहमद ने सरबराही की। इजलास में मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के तहत सड़कों की मुरम्मत सुसरवी का शिकार होने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना, मेंबर सूबाई असम्बली महमूदुल हसन चीमा, उमर जाफर, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी कोर्ट समाबा सैयद महमूदुल हक बुखारी, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा समेत तमाम महकमों के ऑफिसर्स ने शिरकत की। इजलास में जिला में जारी तरक्याती कामों के हवाले से जायजा लिया गया। मुतल्लिका महकमों के ऑफिसर्स ने तरक्याती कामों के हवाले से रिपोर्ट पेश की। MNR के तहत जिला में सड़कों की मुरम्मत सुसरवी का शिकार होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। इजलास को बताया गया कि जिला में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 291 स्कीमें जारी हैं, जिनमें कैडेट कॉलेज खानपुर की तकमील भी तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत 926 स्कीमों में से 618 स्कीमें आखिरी मराहिल में हैं और बाकियों के काम मुकम्मल हो चुके हैं। लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 167 स्कीमों पर काम जारी और आखिरी मराहिल में है। शुगर सेस फंड्स के तहत 69 स्कीमें मुकम्मल की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुतवक्का दौरे के हवाले से रिपोर्ट पेश करते हुए कमेटी को बताया गया कि ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के 3 एकेडमिक ब्लॉक मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3 आखिरी मराहिल में हैं। शेख सैयद मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद कॉलेज के हवाले कर दी गई है। वहाँ तालीमी सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जिला में 6 डिग्री कॉलेजेस की तामीर भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। रहीमिया खान में जिलाई देरपा तरक्याती मकासद मुशावरत कमेटी का पहला इजलास हुआ। इजलास की सरबराही कमेटी चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना ने की। ये रिपोर्ट देखिए। इजलास में कमेटी के फोकल पर्सन डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर आगा तोही, CEO एजुकेशन मलिक मुख्तार हुसैन, एक्सिन बिल्डिंग मोहम्मद नईम भी मौजूद थे। एक्सिन हाईवे कामरान अकमल, एक्सिन पब्लिक हेल्थ अख्तर अब्बासी और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी कोर्ट समाबा सैयद महमूदुल हक बुखारी ने भी शिरकत की। कमेटी के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर सुकरात अमान राना ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से अवामी सहूलियात के लिए कमेटी तश्कील देना अच्छा इकदाम है। इससे तमाम महकमों को अवामी फलाह बहबूद के लिए अपनी सलाहियतों को मजबूत करने के लिए और इकदामात करने के लिए मौके मैसर आएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी की कि 10 रोज में महकमाना रिपोर्ट और अवामी फलाह और तरक्की तजावीज को फोकल पर्सन के पास जमा करवाएं। महकमों की बेहतरीन तजावीज पर मुश्तमिल किताबचा जिला सतह पर शाया किया जाएगा, जिसमें तजावीज पर मुश्तमिल मनसूबाबंदी पर मरहलावार काम किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा ने कमेटी को बताया कि अवामी सहूलत के लिए पेश की जाने वाली बेहतरीन तजावीज पर खसूसी फंड्स जारी किए जाएंगे। उधर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेरे सदारत अफसरान से मीटिंग हुई। मीटिंग में जिले भर के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा ज़राअत के अफसरान से मीटिंग करते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से काश्तकारों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से छोटे काश्तकारों को फसलों के बीज मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। जदीद तरीका काश्तकारी के लिए काश्तकारों को मालूमात फराहम करने के लिए मोबाइल फोन भी दिए जा रहे हैं। काश्तकारों के लिए बिलासूद कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल ने महकमा ज़राअत के अफसरान को छोटे काश्तकारों तक तमाम सहूलियात पहुँचाने की हिदायत की। DC ने कहा कि गफलत बरतने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रहीमिया खान में CEO एजुकेशन अथॉरिटी ने हॉटलाइन शिकायत के हवाले से इमरजेंसी इजलास तलब कर लिया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स शरीक होंगे। हंगामी इजलास कल बरोज हफ्ते को 2 बजे दिन CEO एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में होगा। इजलास में हॉटलाइन के जरिए अवामुन्नास की जानिब से की गई शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में शरीक ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि हॉटलाइन पर दी गई शिकायत के हवाले से किए गए इकदाम की मुख्तलिफ रिपोर्ट लेकर शरीक हों। इसके लिए हेड टीचर और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से भी राब्ता करके मुतल्लिका शिकायत के बारे में अपडेट को शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस से मिलना नून लीग की बदलती पॉलिसी की अलामत है। कहते हैं अमरीकी एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ होने वाला सलूक काबिल मजम्मत है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानिए अमजद मलिक की इस रिपोर्ट में। बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इदारों में महाजराई नहीं होनी चाहिए, शरीफ फैमिली मनी ट्रायल दे। इलेक्शन कमीशन बरमला कह रहा है कि शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, PTI भी शफाफ इलेक्शन चाहती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर निगरान वजीर आजम मुंतखब करेंगे। इलेक्शन कमीशन
बिल्कुल बरमला कह रहा है कि इंशाअल्लाह हम शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे और उन्होंने 2013 के इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा भी है और अब मुनासिब तैयारी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि मुल्क में ना मार्शल लॉ लग रहा है और ना ही जुडिशल मार्शल लॉ लगेगा। एक मुंतखब चेयरमैन सेनेट है, या तो आप कहिए इंतखाब को चैलेंज कीजिए। अगर आपने इंतखाब को चैलेंज नहीं किया और इंतखाब को आपने तस्लीम कर लिया है, उनको अपना चेयरमैन मान लिया है, तो फिर इस किस्म की नुक्ताचीनी जेब नहीं देती। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वजीर आजम के बयान से बलोचिस्तान के अवाम की दिल आजारी हुई है। उन्होंने कहा कि नई हल्का बंदियों पर जिन्हें एतराज है वो अदालत जा सकते हैं। शाह महमूद ने कहा कि नून लीग महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन राव शहबाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। मौजूदा हुकूमत ने 5 सालों में जो कर्जा लिया वो पिछले 60 सालों के बराबर है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। मुल्तान के इलाके सुजानपुर में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अभी गर्मी आई नहीं, बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई है। पूरे मुल्क में सनत बहरान में है। जो छोटे लूम्स लगाए गए थे वो लोग लोहे के रेट में बेच रहे हैं। पानी कोई नहीं, हस्पताल दवा कोई नहीं, स्कूल टाट कोई नहीं, मेज कोई नहीं, बैतल खला कोई नहीं, टीचर कोई नहीं। 60 अरब ला दिते ने मुल्तान मेट्रो ते। मैं मेट्रो के खिलाफ नहीं हाँ, बनाओ, लेकिन पहले मेट्रो की लोड़ है या पीवन के पानी की लोड़ है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि 5 सालों में हुकूमत ने जो कर्जा लिया है वो पिछले 60 सालों के बराबर है। आज हर पाकिस्तानी मकरूज है। आज लाकानूनियत बढ़ चुकी है। हल्के तब्दील की गल थी, लोग हल्के का हिसाब लेते पे। तुम्हारा जेड़ा MNA इस्लामाबाद भज गया, क्या कर गया? वो आख्या एक चुंड निकल गई है हल्के तू, एक चुंडी निकल गई है, एक चुंडी निकल गई है। जेडे स्कीमां मैं इत्थे दित्तियां होईयां ने टप्पो पैसा रोको, फौरी रोको, मेरे काम दा नहीं रहा। इनका मजीद कहना था कि मैंने इमरान खान को सराकी सूबे के लिए कायल किया है। अगर मुल्क में तब्दीली लानी है तो वोट PTI को देना होगा। कैमरामैन सावल जार के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। उधर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा मोहम्मद नासिर अब्बास का कहना है कि पाकिस्तान जोग्राफियाई अहमियत का हामिल है। CPAC मंसूबे से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानिए आसिम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा मोहम्मद नासिर ने डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान से खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे में बदअखलाकियत को फरोग दिया जा रहा है। मुल्क के करप्ट लीडरों को पकड़ा जाए तो तमाम जेलें भर जाएं। अवामी मुंतखब नुमाइंदों का सादिक और अमीन होना जरूरी है। वो मुआशरा सोसाइटी जो अखलाक से आरी हो जाती है, जहाँ पर बदअखलाकी एक कल्चर बन जाता है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। वहाँ कभी सुकून नहीं आ सकता, ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सकता अफराद के दरमियान। अल्लामा राजा मोहम्मद नासिर ने कहा कि इंडियन फिल्में हमारी सिकाफत के खात्मे का सबब बन रही हैं। उनका कहना था कि मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम राइज नहीं, बच्चों को हमारी तारीख से महरूम रखा जा रहा है। स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटीज के, थिंक टैंक्स के फोरम बनने चाहिए ताकि एशिया के लोगों को, बसने वाले लोगों को अवेयर किया जाए, आगाह किया जाए इस इतने बड़े थ्रेट से जो एशिया को गर्क करने की तरफ लेके जा रहा है। अल्लामा राजा मोहम्मद नासिर ने सराकी सकाफत की तारीफ भी की। उनका कहना था कि सराकी सूफिया का कलाम अमन और इंसानियत का पैगाम देता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। रहीमिया खान में इलेक्शन कमीशन ने जिले भर में 122 वोटर्स डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मंसूर अब्बास मुसर्रद ने डिस्प्ले सेंटर के हवाले से इंतजामात का जायजा भी लिया। ये रिपोर्ट देखिए। हक राय दही के इस्तेमाल को हर सूरत मुमकिन बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जिला रहीम जार खान में 122 डिस्प्ले सेंटर्स बनाकर फहरिस्तें अवेजा कर दी हैं। आवाम की सहूलत के लिए डिस्प्ले सेंटर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बशमूल छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे। वोट के रद्दोबदल का अमल 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मंसूर अब्बास मुसर्रद ने जिला इलेक्शन कमीशन ऑफिस का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में 122 डिस्प्ले सेंटर्स हैं। इसके साथ साथ हमारे जो AROs हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, वो उनके ऑफिसेज भी डिस्प्ले सेंटर्स हैं। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस है, बतौर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर
वो भी डिस्प्ले सेंटर्स डिक्लेयर है। इस सिलसिले में ये है कि 8 बजे से 4 बजे तक डिस्प्ले सेंटर पे इंचार्ज बगैर छुट्टी के हफ्ता एतवार को भी वो मौजूद रहेगा और जुमे वाले दिन भी 4 बजे तक ही रहेगा। मुख्तलिफ पूरे रहीम यार खान में मुख्तलिफ इलाकों में 122 डिस्प्ले सेंटर अपने इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जिसके जहां पे वोटर जाके अपने नाम का सही इंदराज देख सकते हैं कि आया उनका नाम उनके मुताल्लिका इलाकों में दर्ज है या नहीं, ताकि इलेक्शन वाले दिन वो अपने इलाके के करीब तरीन पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट कास्ट कर सकें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर दौरे के बाद वोटर्स लिस्टें तैयार की गई हैं। शहरी 8300 पर मैसेज भेजकर अपने वोट की तस्दीक कर सकते हैं। गलत ब्लॉक की सूरत में डिस्प्ले सेंटर से मुफ्त फॉर्म हासिल करके वोट की तब्दीली या दुरुस्तगी कराई जा सकती है। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। आल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के सदर काशिफ चौधरी ने मुल्तान का दौरा किया। इस दौरान काशिफ चौधरी ने मुल्तान की ताजिर बरादरी से मुलाकात भी की। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। सदर आल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद काशिफ चौधरी एक रोजा दौरे पर आज मुल्तान पहुंचे और चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा सलमान सदीकी से मुलाकात की। दौरा मुल्तान का मकसद ताजिर बरादरी में इख्तलाफात कम करके उन्हें अपने हकूक के लिए मुत्तहद करना था। पाकिस्तान के ताजरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए और हुकूमतों के जबड़ों से उनके हकूक को निकलवाने के लिए पाकिस्तान भर के ताजर कायदीन ने मुल्क भर का एक दौरा शुरू किया। सदर आल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद काशिफ चौधरी का कहना था कि वो वफद के हमरा पूरे मुल्क में ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों का मकसद ताजरों को मुनज़्ज़म करके अपने हकूक हासिल करने की लड़ाई में शामिल करना है। ये आज हमारे पास मेहमान आए हैं, कोयटा से भी, इस्लामाबाद से भी, फैसलाबाद से भी। हमने इनको वेलकम कहा है और जो भी ताजरान के मसाइल थे उनके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा सुलेमान सदीकी का कहना था कि वो काशिफ चौधरी को मुल्तान में खुशामदीद कहते हैं और उनसे भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। जबकि मुलाकात में ख्वाजा सुलेमान, ज़ैनुल आबिदीन, शेख जावेद अख्तर समेत दीगर ताजिर रहनुमा शरीक थे। कैमरामैन आसिफ के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। थाना कचहरी से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अदालत इंसार दहशत गर्दी ने 50 लाख रुपए तावान तलब करने वाले मुलजिम जावेद इकबाल का फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी करने का हुक्म दे दिया। कोर्ट ने 50 लाख रुपए तावान तलब करने वाले मुलजिम का फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशत गर्दी कोर्ट नंबर 1 के जज मलिक खालिद महमूद ने काफी शवाहिद की बिना पर मुलजिम को बरी करने का हुक्म दिया। मुल्तान में थाना मुजफ्फराबाद पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 3 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी बरामद असलहा कर लिया गया है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में थाना मुजफ्फराबाद पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। मुल्तान में थाना मुजफ्फराबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने 3 मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। तीनों मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही मजहर खान से। मजहर खान, कहिएगा कौन है ये तीनों मुलजिमान? बिल्कुल, ये मुजफ्फराबाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की है और फयाज नामी एक शख्स था जिसको पुल मुजफ्फराबाद के करीब से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से जो रिपीटर है वो बरामद हुआ है। इस तरीके से माजिद नामी शख्स के कब्जे से 30 बोर रिवाल्वर और 30 बोर पिस्टल और कामरान के कब्जे से 32 बोर रिवाल्वर बरामद हुआ है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है कि इन्होंने ये असला कहां से खरीदा था और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। पुलिस ने पूरा तीनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और तहकीकात शुरू कर दी गई। मजहर खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुल्तान के नवाही इलाके कादिरपुर राह में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 600 लीटर शराब बरामद कर ली है। मुल्तान के नवाही इलाके कादिरपुर राह में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुंशियात फरोश को गिरफ्तार करके 600 लीटर शराब बरामद कर ली है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही मजहर खान से। मजहर खान, कहिएगा कामयाब कार्रवाई की गई है, आगाह कीजिएगा। SHO थाना कादिरपुर रहा है अफजल कुरैशी, उन्होंने टीम के हमरा ये कार्रवाई की है। नवाई इलाका है मुल्तान का कादिरपुर रहा,
और वहां से जो एक नासिर नामी मनशियात फरोश है इसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इसके खिलाफ पहले भी मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज थे। ये शराब फरोख्ती का बड़े अरसे से तवील कारोबार ये कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 600 लीटर वहां से शराब देसी बरामद की है। उसके साथ साथ जो चालू पट्टी का सामान है वो भी पुलिस ने तहवील में लेकर उसको थाने मुंतकिल किया है और पुलिस हुकाम ने इस मनशियात फरोश नासिर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मजहर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे तालीम और तरबियत की। रहीमिया खान में कर्जबार स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुमताज बिजनेसमैन चौधरी मोहम्मद शफीक ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। कुर्तबा स्कूल रहीमिया खान में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुमताज बिजनेसमैन चौधरी मोहम्मद शफीक ने कामयाब तलबा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात वालिदैन के हीरोज और उसातिज़ा का फख्र थे। हमने यहाँ से पोजीशन ली है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में दोबारा ऐसे इवेंट्स होते रहें। जिसने हमें तैयारी कराई बहुत अच्छी, हमें बड़ा मजा आया। यहाँ शो हुआ है, बहुत अच्छा शो था और हमें शील्ड दी गई, हर चीज़ दी गई है और हम आज घर जाके दिखाएंगे कि हमें इतने कुछ दिया गया है और यहाँ फंक्शन भी होता है, बहुत अच्छा होता है। तकरीब तकसीम इनामात में जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अनवारुल हक, डायरेक्टर स्कूल फहीम जमील, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल साजिद इकराम, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलोनी हाई स्कूल सरदार कमरुद्दीन खान समेत वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम यार खान। अच्छी खबर यह है कि रहीमिया खान में रिक्शा ड्राइवर के आंगन में 4 फूल खिल उठे। 2 बेटों और 2 बेटियों की आमद ने गरीब घर में खुशियां बिखेरती हैं। आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से। रहीमयार खान के नवाही इलाके सरदार घाट से ताल्लुक रखने वाले रिक्शा ड्राइवर शाहिद के घर 4 बच्चे पैदा हुए। इकट्ठे 4 बच्चों की पैदाइश पर घर वाले हुए निहाल। नानी, दादी, फुफ्फी, खाला सब ही हैं खुश। घर में आए 4 नन्हे मेहमानों से घर का आंगन चहचहाने लगा। मुझे अल्लाह की ज़ात ने 4 बच्चों से नवाजा है तो बहुत खुशी हो रही है इस वक्त। मेरे घर में 4 बच्चे हैं और मेरी वाइफ भी बहुत खुश है। 2 भतीजा 2 भतीजे हुए हैं। मैं बहुत खुशी मनाऊंगी। बहुत खुश हूँ, ठीक है, सही है, सब बहुत खुश हूँ, सारी फैमिली भी खुश है। बच्चों की वालदा को तबीयत खराब होने पर शेख सैयद अस्पताल लाया गया, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया माजिद ने फौरी ऑपरेशन करके मां और बच्चों की जिंदगियां महफूज की। 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां और सारे बच्चे माशाल्लाह से 1.5 kg और इससे ऊपर के हैं और अब वो नीचे पीडियाट्रिक न्यूनेटल केयर में एडमिटेड हैं। बच्चों को शेख ज़ायद अस्पताल के बच्चा वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे और मां दोनों सेहतमंद हैं। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सदीक, रूही रहीम यार खान। और बुलेटिन के अख्ताम पर आपको बताएं कि नूर महल में फूलों की रंगारंग नुमाइश जारी है। जाते जाते ये रिपोर्ट मुलाहिजा करते जाइए। बहावलपुर में रंगारंग फूलों की नुमाइश कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से लगाई गई। खूबसूरत तकरीब का इफ्तिताह नूर महल के अहाते में कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन ने किया। कोर कमांडर ने तमाम स्टॉल्स का दौरा भी किया और कामयाब नुमाइश पर मुबारकबाद दी। नुमाइश में खूबसूरत फूलों के स्टॉल सजाए गए। सजाने पर कामयाब होने वाले अफराद को इनामात भी दिए गए। पहला इनाम बहावलपुर के सादिक पब्लिक स्कूल को दिया गया और सादिक पब्लिक स्कूल ने इसमें फर्स्ट प्राइज हासिल किया है, तो इसका क्रेडिट मेरी जितनी भी टीम है मैं उसको देता हूँ। हमारे माली, हमारे स्टेट ऑफिसर, हमारे प्रोफेसर ये मेरे साथ खड़े हैं और सब ने बड़ी मेहनत से काम किया और आई पे रिच ट्रिब्यूट टू ऑल ऑफ देम। बहावलपुर की पहचान नूर महल के अहाते में होने वाली फूलों की नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने खूबसूरत नुमाइश पर कंटोनमेंट बोर्ड को खूब दाद दी।
سر پھولوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کو ہم لوگوں کو تاریخی مقامات ملے، جیسے نور محل کو ہم نے دیکھا اور بہت ہی اچھا لگا. اس میں بہت سی تاریخی باتیں ہمیں پتہ چلی. Such a wonderful place. We are enjoying a lot. زیادہ پھول دیکھے اور کافی خوبصورت تھا. مجھے میرے گھر کے لیے فرسٹ پوزیشن ملی. نمائش شام تک جاری رہی. اس دوران علاقائی دھنوں پر روایتی رقص نے نمائش کو 4 چاند لگا دیے. کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، بہاولپور.